السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے غازی ناول کا قسط نمبر 34 تیار ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہیں خاص انجیکشن لگا کر کچھ سوال پوچھے جائیں گے۔ انجیکشن کی وجہ سے تمہارا دماغ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی تم بولنے لگ جاؤ گے۔ اس کا فیصلہ مشین کرے گی کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ ڈاکٹر نے جانے سے پہلے ایک بات کہی جسے سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ میں کرنل شنکر کا دوست ہوں اور اس کا معالج بھی۔ اس کے کہنے پر مجھ سے جو سہولت ممکن تھی میں نے دی اور دلوائی۔ کرنل شنکر تمہیں بہت پسند کرتا ہے، یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ گرفتاری کے بعد تشدد شروع ہونے پر سے لے کر آج مجھے پتہ چلا کہ آج کون سا دن ہے۔ میرے پاس صرف 2-3 راتیں تھیں جن میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ اب میں مزید تشدد سہنے کے قابل نہیں تھا اور خاص کر مشین والی عملی عمل سے تو کچھ بھی چھپانا ناممکن تھا، جس کے لیے میں نے اتنی اذیتیں برداشت کی تھی۔ اس لیے میرے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ اپنے پلان کو انہی 2 راتوں میں عملی جامہ پہنا دوں۔ فرار میں کامیابی کی امید تو بہت کم تھی، لیکن گارڈز کی گولیوں سے مرنے کا پورا یقین تھا۔ دونوں صورتوں میں میرے جیت کی اور ہار ڈیمائی کے لیے اس نے اتفاق سمجھے یا اللہ پاک کی مدد۔ اس رات 12 بجے برہمن اور اس کا ساتھی ڈیوٹی پر تھے۔ دنیا بھر میں فوجی، جاسوس، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر تمام ایسے ادارے جن کا تعلق سیکیورٹی یا کسی بھی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری ہو، انہیں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ دشمن کو مار دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مار دے۔ Kill your enemy before you kill۔ فوجی کا دل میں جب بھی کسی دشمن کے لیے دل میں رحم کا جذبہ آیا سمجھو وہ فوجی صاحب خود مارے گئے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں نے آج رات ہی فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ Now or never پر جم گیا۔ میں نے ان کی ڈیوٹی شروع ہونے کے آدھ گھنٹے بعد برہمن کو لیٹرین جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے میری کلائی کے کاڑے میں رسی باندھی۔ دوسرے گارڈ نے رائفل میری طرف تان لی۔ برہمن نے دروازہ کھولا اور میری رسی کا سرا پکڑا اور مجھے لیٹرین کی طرف لے گئے۔ میں نے لیٹرین میں سے 5-6 منٹ لگائے۔ اس دوران کڑے سے رسی کھول کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ دونوں گارڈ مجھے سیل کی طرف لے جانے لگے۔ اب دونوں نے اپنی رائفلیں اپنے کندھوں پر لٹکا رکھی تھی۔ میں نے درد کا بہانہ کرتے ہوئے خود کو جھکا لیا۔ دونوں گارڈ میرے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں نے دانستہ قدم چھوٹے لینے شروع کر دیے۔ 4-5 قدموں میں ہی میں نے اسے پیچھے رہ کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے بجلی کی تیزی سے پیچھے والے گارڈ کی پیچھے سے سنگین نکالی اور پوری قوت سے اس کے پیٹھ میں گھوم دی۔ سنگین اس کی پیٹھ کے آر پار ہو گئی، اس کے منہ سے آہ تک نہ نکلی۔ میں نے سنگین نکالی اور ساتھ والے برہمن کی پشت میں گھومتی۔ یہ سارا عمل 5-10 سیکنڈ میں مکمل ہو چکا تھا۔ برہمن نے چیخ ماری۔ اس سے پہلے کہ میں سنگین باہر کھینچتا وہ بھی ڈیر ہو گیا۔ میں زخمی ہونے کے باوجود پوری قوت سے بیرونی دیوار کی طرف بھاگا۔ ہوائی چپل میں نے لیٹرین کی طرف پھینکے اور دیوار کے پاس پہنچ کر پوری قوت سے اچھلا۔ قد لمبا ہونے کی وجہ سے اچھلنے پر میرا ہاتھ تیسری خاردار تار پر پڑ گیا۔ اسے مضبوطی سے تھام کر میں نے دوسرے ہاتھ بھی مضبوطی سے اس تار پر ڈال کر پکڑ لیا۔ بازو کے زور پر میں نے اپنا جسم اوپر اٹھایا اور پاؤں دیوار پر اٹکا کر ہاتھوں سے چوتھی پر 5ویں تار پکڑ لی۔ میرا جسم بھی ساتھ ساتھ اٹھتا رہا۔ سب سے اوپر والی تار کو میں نے تھام کر نیچے دبایا اور میرے دونوں پاؤں دیوار کے اوپر آ گئے۔ اب میرے سامنے 3 فٹ اونچی 6 خاردار تاریں تھیں جنہیں پلانگ کر میں دیوار کی دوسری جانب جا سکتا تھا۔ حالت میں یہ 3 فٹ اونچی رکاوٹ پلانگنا بہت معمول بات تھی، لیکن جسمانی کمزوری، چوٹوں اور زخمی ٹانگ کی وجہ سے یہاں تک پہنچتے میرا سانس پھول چکا تھا۔ گارڈ کو مارنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں تقریباً آدھ منٹ لگا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی زخمی ٹانگ کو اپنے دائیں ہاتھ کا سہارا دے کر اوپر اٹھایا اور بال کی دوسری طرف رکھا۔ اس وقت مجھے اندرونی حصے میں سیٹیاں بجنے کی آواز آنے لگی۔ اب ضائع کرنے کو 1 سیکنڈ بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے بائیں ٹانگ بال کی دوسری جانب کی تو جلدی تار کا سیخ کاٹنا میری ٹانگ کی چیرتا ہوا نکل گیا۔ میں نے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ زخمی ٹانگ کی وجہ سے میں سنبھل نہ پایا اور گر گیا۔
कूदने की वजह से गालिबन मेरी टांग का जख्म भी खुल गया था। मैंने हवास बहाल रखे और कभी बाएं टांग पर उछलते हुए और दाएं पाँव की पंजों का सहारा लेते हुए सड़क की तरफ भागने लगा। अंदर से सीटियों की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। ऐसी मालूम होता था कि अंदर का अहवाल मालूम न होते हुए सारी नफरी मेन गेट पर जमा हो रही है। सड़क की दूसरी जानिब झाड़ियाँ थी। मैं इनकी ओट में बैठ गया। चंद सेकंड सांस बहाल होते ही मैंने सड़क पर अपने सीधे हाथ की जानिब भागना शुरू कर दिया। अब मुझे जख्मी होने वाली टांग के जख्म से बहने वाले खून की परवाह नहीं रही थी। जिंदा रहने की आस में सबसे दर्द वक़्त हो चुके थे। सड़क पर अभी मैं 100 फुट ही भागा होगा कि सामने से आने वाली गाड़ी की तेज रोशनी मेरे आंखों से चंदिया गई और सड़क से साइड पर हो गया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने देखा कि वो एक टैक्सी थी। जब वो टैक्सी मेरे इतना करीब आ गई कि उसे मजबूरन रोकना पड़ा तो मैं सड़क के ऐन दरमियान में आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और सड़क पर टायरों के घुसने की आवाज़ आई। टैक्सी मुझसे चंद फुट के फासले पर रुक गई। ड्राइवर मुझे इस तरह अचानक देखकर घबरा गया। टैक्सी खाली थी। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा खोला। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। आधी रात के वक्त एक शख्स के सर और टांग पर पट्टियाँ बंधी हुई हो और इसकी हालत वहशतनाक हो, जब आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या हालत हो सकती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ड्राइवर की इस वक्त क्या हालत हो सकती थी। दरवाज़ा तो मैं पहले ही कूद चुका था, लिहाजा मैंने तय कर लिया कि अगर ड्राइवर ने उसे ले जाने से इनकार कर दिया तो मैं इसकी इसी नसें दबाकर ख़त्म कर दूंगा। मैंने ड्राइवर को कहा कि मैं ज़ख्मी हूँ और गुंडे मेरे पीछे हैं, मुझे फ़ौरन यहाँ से ले चलो। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुँच जाए ड्राइवर ने कहा आप पीछे बैठ जाए, लेकिन मुझे लगा कि मैं पिछले दरवाजे की तरफ गया तो ये गाड़ी भगा ले जाएगा, लिहाजा मैंने इसकी गाड़ी की चाबी निकाली। बजाय पीछे बैठने के इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। इससे मैंने अपना दरवाज़ा बंद करने को कहा और कहा कि चुपचाप चलो तो कुछ नहीं कहूँगा, अगर होशियारी दिखाई तो गला दबा दूंगा। इसने जी अच्छा कहा और मैंने उसे चाबी दी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। मैंने उसे पुरानी दिल्ली चलने का कहा और वो गाड़ी भगाने लगा। जल्द ही हम उस इलाके में पहुंच गए। जो मेरा देखा बाला था वो पुरानी दिल्ली ही जा रहा था। मैंने उसे महल पराश खाना चलने का कहा और फिर एक गली के सामने उसे रोक कर कहा मेरी हालत तुम देख रहे हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। वो तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। इसने कहा कि कोई बात, अगर आपको 150 चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं नीचे उतरा। अभी दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं किया था कि उसने गाड़ी भगा दी और देखते ही देखते नज़र से ओझल हो गया। उसी गली से मैं बखूबी वाकिफ थी। तकरीबन 1 किलोमीटर फासिला साथियों के घर तक था, जो मैंने उठते बैठते दीवारों का सहारा लेते हुए 1 घंटे में तय किया। साथियों के घर के करीब पहुंचा तो मैं बिल्कुल निडाल हो चुका था। मैंने मुसलसल घंटी बजानी शुरू कर दी। चंद मिनट बाद मालिक मकान नज़ीर ने दरवाज़ा खोला तो मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर पहले तो पहचान नहीं पाया। जब मैंने उसका नाम लिया तो वो चौंक उठा। मुझे फौरन अंदर खींचकर कुंडी लगा दी। चंद रस्मी कलिमात के बाद मैंने साथियों का पूछा तो उसने सब खैरियत से और ऊपर सो रहे नज़ीर का सहारा लेकर मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर साथियों के दरवाजे पर पहुंचा। नज़ीर ने मेरे साथियों को जगाया। मुझे और मेरी हालत देखकर वो इतने हैरान हुए कि इनके मुंह से बात तक नहीं निकलती थी। फिर सब ने बारी बारी मुझे गले लगाया। फरार के वक्त मुझे जो हिम्मत आ गई थी यहाँ पहुंचकर ख़त्म हो गई। मैं एक साथी के बिस्तर पर गिर गया और अपने नंबर 2 को कहा कि मोहल्ला पराश खाना से यहाँ मेरी टांग से बहने वाला खून मेरी निशानदेही कर सकता है, लिहाजा पहले उसे साफ करके आओ। इसी वक्त 2 बाल्टियों में पानी डालकर बोरियों के टुकड़े हाथों में लेकर खून साफ करने निकल पड़े। नज़ीर अपने घर से चाय बिस्कुट और सवैया बनाकर ले आया। मैं बात करने के काबिल न था। मैंने उन्हें मुख्तसर बताया कि डीएमआई के कैद से फरार होकर यहाँ आए हुए और मेरी ज़ुबान खुलवाने के लिए तमाम हरबे आजमा कर मेरी ज़ुबान खुलवाने में नाकाम रहे। नज़ीर ने जाकर आरिफ को मेरे आने और ज़ख्म होने का बताया तो आरिफ ने अपने नहायत ही करीबी और भरोसेमंद डॉक्टर को बुलाने चला गया। चाय और सवैयों ने मुझे कुछ तक़वियत दी और फिर मैंने बेफिक्री के आलम में गहरी नींद की वादी में खो गया। 1 माह 6 दिन पहले 6 जून 1974 को मैं गिरफ्तार हुआ था और आज 21 जुलाई जुमतुल मुबारक था। गिरफ्तारी के बाद मजमूई
तौर पर मैं 15 या 20 घंटे सोया था, वरना पेशतर वक्त तशद्दुद और इसके नतीजे में होने वाले बेहोशी की हालत में गुजारा था। मुझ पर तो तशद्दुद होता रहा, इसकी तफसील में बयान कर चुका हूँ। 23 साल बाद भारतीय हिंदू के मुझ पर तोड़े गए जुल्म व सितम को तहरीर करते हुए जो मेरी किफियत है उसे मैं जानता हूँ। मैंने हिंदू को इनके असली रूप में देखा था। खिता हिंद के कदीम असल बाशिंदों को हमलावर आर्यन ने हमला करके जनूब में धकेल कर और कुल, द्रावड़ और अछूत के नाम देकर हजारों बरस इन पर इंतहाई बेरहमाना तौर पर हुकूमत की और उन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। फिर मकापाती अमल का वक्त आया तो जज्बे शहादत से अपने सीनों को मुनव्वर करके चंद हजार मुसलमानों ने मगरिब से आकर इन मगरूर आरायों पर जो खुद को दुनिया से सबसे बरतर नस्ल समझते थे, हजारों बरस तक इन पर हुकूमत की और इन्हें बताया कि कोई भी इंसान मुहिज अपनी नस्ल की बिना पर कमतर या बरतर नहीं होता। ये इसके अमाल होते हैं जो उसे कमतर या बरतर बनाते हैं। लेकिन हिंदू ने इस हकीकत को आज तक तस्लीम नहीं किया। उन्होंने खुद को मुख्तलिफ ज़ातों में तकसीम कर लिया। सबसे अफजल ब्राह्मण, सिकंद राजपूत, तड़ कश्तरी और फिर मजीद तकसीम दर तकसीम होकर 2 सैकड़े ज़ातों में बट गए हैं। लेकिन इन सब हिंदू ज़ातों में एक कदर मुश्तरक है और वो है मुस्लिम दुश्मनी। स्टेज पर ऊंच ज़ात से लेकर नीच ज़ात के हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर है और आज भी है और हमेशा रहेंगे। लेकिन हम मुसलमानों में बीमारी है कि हम में आज भी पहले भी वतन परोश, मिल्लत परोश और मजहब परोश मौजूद है जो इन मकार अयार और दुनिया की गंदी और घटिया तरीन कौम को अपना कहते हैं, इनके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और इन हिंदू का ये हाल है कि अगर इन पर मुसलमान का साया भी पड़ जाए तो कहते हैं हम बर्श नापाक हो गए। और मुसलमानों में गद्दार मीर जाफर और मीर सदिक की औलाद कहती है हमें हिंदू से प्यार है। मुझे शर्म आती है ऐसे घटिया मुसलमानों की सोच पर जो ये कहते हैं कि बॉर्डर लाइन क्यों लगाई गई है। पाकिस्तान बनाकर कायद आज़म ने गलती की है तो याद रखो गद्दार की औलादों, कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाकर गलती नहीं की, गलती तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देकर की है। मुसलमानों से हद दर्जा नफरत करने वाली इस हिंदू कौम का ही हाल माजी में रहा है कि इनके सोच व इनसी राजे महाराजे मुस्लिम हुक्मरानों की हिब्बत से लर्जा होकर अपनी बहनें बेटियां मुसलमान हुक्मरानों को निकाह में दी। राजा जयचंद जो जहलम से पेशावर तक का हुक्मरान था, 4 बार पूरी तैयारी के साथ अहमद शाह अब्दाली से जंग की। हर बार अहमद शाह अब्दाली उसे शिकस्त देकर काबल ले जाता, राजा जयचंद से अपने पाँव धुलवाता और उसे रिहा करके वापस भेज देता। बरसगीर में जब अंग्रेज आए तो शुरू में उन्हें हिंदुओं ने मुसलमानों से गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेज बरसगीर में मुस्लिम हुकूमत ख़त्म करके बरसरी इक़्तिदार आए तो इन हिंदू ने अंग्रेज़ों के तलवे चाटने शुरू कर दिया और अपनी बेटियां अंग्रेज़ों को पेश करनी शुरू कर दी। और अंग्रेज़ इन पर मेहरबान हुए तो इन हिंदू ने इन 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म व सितम की वो तारीख़ रकम की कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। हिंदू चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सब मुसलमानों को बहीरे अरब में फेंक दिया जाए ताकि सारा हिंदुस्तान भारत शुद्ध हो जाए। लेकिन औकाब मर जाना पसंद करता है लेकिन पंजरे में कैद होना पसंद नहीं करता। तारीकी के बाद रोशनी भी ज़रूर होती है। फिर बरसगीर के मुस्लिम कैदीन ने बेलोस जद्दोजहद शुरू कर दिया और आखिरकार बरसगीर के मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में ऐसी जद्दोजहद शुरू की कि फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इस क़यादत की मेहनत, लगन, बहादुरी, अक्लमंदी के नतीजे में दुनिया पर एक इस्लामी सुल्तनत पाकिस्तान के नाम पर कायम हुई जिसकी बुनियादों में मुसलमान मर्दों, औरतों, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, अमीर, गरीबों का लहू शामिल है। और मगर इस वक्त भी कुछ गद्दार किस्म के लोग थे जो पाकिस्तान के बनने और मुसलमानों के एक अलहदा वतन कायम होने के खिलाफ थे। इन गद्दारों की औलादें आज हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों के तबके में शामिल है और इन गद्दारों की औलादें हम पर हुकूमत कर रही है। इसलिए गद्दार अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए हिंदू के साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और हम बन गए हैं। पता नहीं कि कब हमारे ज़हन इन गद्दारों की मिल्लत परोश पहुँचाएंगे। भारतीय हिंदू भलाई कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि लाखों मुसलमान बहिफाजत पाकिस्तान हिजरत कर जाए। इसलिए 1947 क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करने वाले मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद किया गया।
नौज़ायदा पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान के हिस्से का सरकारी रुपया भी अदा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली फौज का असला ज़ब्त कर लिया गया। पाकिस्तान की इंतहाई मुख्तसर तरीन एयरफोर्स के जो आस्टर और हार्वर्ड जहाज़ तकसीम हिंद के वक्त भारत में थे, उन्हें लाने के लिए जब पाकिस्तानी पायलट भारत गए तो उन भारतीय कमीनों ने जहाज़ों के पेट्रोल टैंक में चीनी डाल दी, चुनांचे वो जहाज़ भारतीय हदूद में ही गिर कर तबाह हो गए। कश्मीर पर गासिबाना कब्जा लिया और कश्मीरी मुसलमानों पर एक न ख़त्म होने वाले दास्तान शुरू। मैं गहरी नींद में था कि मेरी साथियों ने झंझोड़ कर मुझे जगाया। आरिफ डॉक्टर लेकर आ चुका था। डॉक्टर ने मेरी टांग के जख्म को देखा, हड्डी से टूटे हुए टुकड़े को गोश्त से अलग किया। जख्म वाली जगह पर हड्डी बिल्कुल नंगी हो चुकी थी। इसकी मरहम पट्टी की ताज़ा तरीन जख्म मेरे बाएं रान पर खारदार तारों को पलंगते वक्त आया था। डॉक्टर ने उसे साफ किया। मेरी सर की हड्डी टूट चुकी थी। खोपड़ी के गोश्त का कुछ हिस्सा टुकड़े के बीच चला गया था और कुछ हिस्सा ने सर के ऊपर स्पीड ब्रेकर बना रखा था। डॉक्टर आरिफ का ये इंतहाई बाएतिमाद दोस्त जनरल प्रैक्टिस करता था, जबकि मेरे जख्मों को ऑपरेशन थिएटर सर्जन की ज़रूरत थी। इस डॉक्टर से जो बन पड़ा इसने किया और हर रोज़ सुबह आने का कहकर चला गया। मेरे साथियों ने मेरी शेव बनाई और मेरे जिस्म स्पेंज किया। मेरे सारे कपड़े और सामान तो लुधी होटल में था। मेरे जूडो कराटे वाले साथी ने बताया कि मेरी जिन हालत में गिरफ्तारी हुई थी, इससे वो समझ गया था कि मुसीबत बहुत बड़ी है, लिहाजा वो सीधा लुधी होटल चला गया। होटल के स्टाफ ने मेरे हमरा देखा हुआ था, चुनांचे इसने अपने मेरे और चिकट आउट होने को कहा और मेरे कमरे की चाबी भी ली। इसने मेरा सारा सामान पैक किया। होटल में हम दोनों की 1 जून को एडवांस में महीने भर की अदायगी कर दी थी। चुनांचे होटल वालों ने हमारी बकाया रकम वापस कर दी। मेरे मुतलक इसने होटल वालों को बताया कि एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में कलकत्ता जाना पड़ गया था और वापसी 3-4 माह बाद से कबल मुमकिन नहीं। मेरा ये साथी चूँकि मेरे तवस्सुत से ही होटल में ठहरा था, लिहाजा होटल वालों ने उसे कोई तारुज़ नहीं किया और एडवांस दी हुई रकम के साथ मेरा साथी अपने सामान के साथ मेरा सामान भी ले आया था। मैंने कपड़े तब्दील किए और अपने नंबर 2 से मेरी गिरफ्तारी के बाद पेश आने वाले वाक़यात के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की खबर दूसरे दिन पाकिस्तान ट्रांसमिट कर दी थी। वहाँ से दूसरे दिन वापसी मैसेज मिला कि तमाम तर सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाए और नए अहकाम तक हबीब ही ग्रुप लीडर होगा। इसने बताया कि यशवंत से मामूल के मुताबिक डाक ली जाती है, लेकिन उसे पाकिस्तान ले जाने वाला कोई न था। 5 जुलाई को पाकिस्तान से पैगाम मिला कि कैप्टन अरशद को हबीब वही मिले जहां इनकी पहली मुलाकात हुई थी। ये सब्ज मंडी का मेन रोड पर होटल था। 6 जुलाई को वे साथियों की कवर में इस होटल में पहुंचा और कैप्टन अरशद को तफसील मेरी गिरफ्तारी का बताया और डाक का तबादला किया। कैप्टन अरशद अपने हमरा नया कुरियर ले आया था। आइंदे उससे मिलने का वक्त और जगह तय किया और अभी इसके आने में 6 रोज़ बाकी है। लड़के मेरी गिरफ्तारी का सुनकर बहुत मुश्तइल थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं DMI की हिरासत में हूँ तो उन्होंने वहाँ बोमों के 3 धमाके किए। इसकी तफसील बहुत पहले अर्ज कर चुका हूँ। मैंने अपने साथी को अपने गिरफ्तारी के हालात तफसीलन बताए। मेरा DMI हेडक्वार्टर से जिंदा बच निकलना एक मौजज़ा था। मुझ जैसे गुनाहगार पर अल्लाह पाक अपने खास रहम किया था और अब एक तफसीली रिपोर्ट मैं अपने साथियों से लिखवा रहा था ताकि कुरियर के जरिए पाकिस्तान भिजवा सकूं। मेरी तीमारदारी का काम मेरे साथियों ने संभाल लिया था, जबकि डॉक्टर के मशवरे से नज़ीर ने मेरे लिए मुर्गन ग़ज़ाए पकवाना शुरू कर दी ताकि मेरी जिस्मानी कमज़ोरी जल्द दूर हो सके। डॉक्टर बिलानागा आता मेरी मरहम पट्टी के अलावा मुझे दवाइयाँ और इंजेक्शन लगाता। मेरी टांग का जख्म सिर्फ इस हद तक से हुआ था कि मेरी टांग की नंगी हड्डी पर एक बारीक गोश्त की जली बन चुकी थी और आज भी हालत है कि इस जगह पर साबुन की जोर गुस्तु तो जली पड़ जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। दाएं टांग की चिफनी तशद्दुद से टूट चुकी थी और फिर सही न जुड़ सकी और पट्टे इस तरह मजरूह हुए थे कि दाएं टांग का जोड़ हमेशा के लिए सूज गया और इस टांग पर न मैं बोझ डाल सकता हूँ और न मामूली रकावट पलांग सकता हूँ। मैदे में शीशे के ज़रात इस तरह पेवस्त हो चुके हैं कि मुस्तकिल मैदे का मरीज बन चुका हो और मुसलसल दवाइयों का इस्तेमाल करता हो। एक और तकलीफ शदीद दमे की सूरत में नज़ीर घर में ही शुरू हो गई, जैसे बम्बई, काठमांडू और पाकिस्तान के फौजी डॉक्टर भी ठीक न कर सके। ये तकलीफ 1977 में एक आम डॉक्टर की दवाई से हमेशा के लिए दूर हो गई। ये निहायत की कीमत दवा मैंने मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद ज़रूरतमंदों में मुफ्त तकसीम करनी शुरू कर दी। इस दवा से पुराने दमे का मरीज भी 15 दिन के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे परार के चौथे
چنانچہ بھارت کے انگریزی اور ہندی اخبار میں میری تصویر کے ساتھ میری خبر چھپی ہوئی تھی کہ یہ پاکستان جاسوس بھارت قید سے فرار ہو گیا ہے، اس کا بتانے والا 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے، شکریہ، والسلام۔